Hello dear students, today we will start with chapter 4 Agriculture class 10th according to CBSE syllabus. So before we start, we should know what is the meaning of agriculture. What is agriculture? It is a primary activity. Primary activity means the activity which is directly related to nature. It is a primary activity which produces most of the food that we can consume. And beside food, it also provides raw material to so many agro-based industries in India. Why agriculture is called the mainstay of Indian economy? What is the meaning of the word mainstay? Mainstay means why it is important. It is important because 2/3 of its population of India is engaged in agricultural activities. 2/3 means approximately 62% population of India is engaged in agriculture. That means dependent on agriculture. That is why it is the mainstay of Indian economy. And most of the industries, agro-based industries, are dependent on agriculture for their production. That is why in Indian economy, agriculture is called the mainstay. The types of agriculture that are practiced in India. कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप एग्रीकल्चर की होती है. This is the first type, primitive subsistence agriculture. अब बच्चे ये देखो आप कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. What is the meaning of primitive? What is the meaning of subsistence? अगर तुम्हें इन दोनों के मीनिंग पता है तो तुम इसके बारे में लिख सकते हो. What is the meaning of primitive? Primitive means old techniques and subsistence means for their own use. Now how can we define this? This is the type of agriculture in which farmer use old techniques for their own use. Old techniques for their own use. This type of agriculture is called the primitive. And this type of agriculture is practiced in few pockets of India. इंडिया की बहुत कम जगह है जहाँ पे ये एग्रीकल्चर जो है वो होती है. Subsistence agriculture is practiced in small patches of land with primitive tools. बहुत पुराने टूल्स इसमें यूज होते हैं क्योंकि नाम क्या है प्रिमिटिव. तो टूल्स कौन से होंगे? पुराने, ओल्ड टेक्निक्स यूज होंगे. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? झूमिंग. वहां पे क्या है? दिस इज द फॉरेस्ट लैंड. एक फॉरेस्ट लैंड है. फार्मर यहाँ पे नंबर 1, ये 1 नंबर पे फार्मिंग कर रहा है. पहले वो यहाँ पे ट्रीज को गिराता है. फार्मर फेल द ट्रीज, बर्न द ट्रीज एंड डू एग्रीकल्चर इन दिस one patch of land. Then after 2 and 3 years he shift to second. Then after 2 and 3 years he shift to 3. Then 4, then 5, then 6, then 7. मतलब एक जगह पे रह के वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा क्योंकि वो एक ही तरह की एग्रीकल्चर कर रहा है. और जब हम एक ही तरह की एग्रीकल्चर करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी. तो फार्मर को पता नहीं है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्यों खत्म हुई. तो फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गया, फिर वो तीसरी जगह पे शिफ्ट कर गया, चौथी जगह पे शिफ्ट कर गया और बहुत सालों के बाद घूम के वो फिर वापस फर्स्ट जगह पे आ गया. तो ही इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर इज झूमिंग. उसको हम झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. ठीक है. पुराने टूल्स फॉर देयर ओन यूज. फार्मर अपने यूज के लिए यूज करता है. ठीक है. इस एग्रीकल्चर के बहुत सारे, ये एग्रीकल्चर सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. इसका अलग अलग नाम है. इसको जो है, इसके जो नेम्स हैं, ये जो इंडिया में है इसको बिवाड़ और दाहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में. कोडू और पैंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में.
इसको कमान और ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में, कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वॉलर और वॉल्टर्स बोलते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, करुवा बोलते हैं झारखंड में और झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। इंडिया के बाहर कॉनुको बोलते हैं वेनेजुएला में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, मिसौल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया में एंड इट इज कॉल्ड रे इन वियतनाम। द एग्रीकल्चर इज सेम but the different names in different parts of the country and in different parts of India also. So this is the first type of agriculture which is practiced in India. Now the second, intensive subsistence agriculture. ये जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ होती है? हाई पॉपुलेशन एरिया। तो इंडिया तो सारा ही हाई पॉपुलेशन एरिया है, तो ये हाई पॉपुलेशन एरियाज में होती है। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स है, ये जो लैंड होल्डिंग है, जो एक खेत का साइज है वो बहुत छोटा है। लैंड होल्डिंग का साइज छोटा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको शिफ्ट होनी। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे सपोज करो फादर है, फादर के 4 बेटे हैं और फादर के पास 4 एकड़ जमीन है, तो चारों बेटों को कितनी कितनी आएगी? 1 1 1 1, सबको 1 1 1 1 आ गई। अब वो 4 बेटों को 1 1 1 आ गया। अब वो 4 बेटों के आगे 2 2 बेटे हैं, तो सबके पास कितनी चलेगी? हाफ 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 हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद उनके 2 2 बेटे हैं और कम हो गई, फिर जब वो आगे जाएगी और कम हो जाएगी, आगे जाएगी और कम हो जाएगी। तो इस लॉ की वजह से लैंड का साइज जो है वो क्या है? छोटा है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और साइज लैंड का छोटा और क्या है? हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हाई है। तो अब साइज छोटा, पॉपुलेशन ज्यादा, तो पूरी पॉपुलेशन को हमने खिलाना है, तो क्या करेंगे? मेथड्स कौन सा यूज करेंगे? इंटेंसिव। इंटेंसिव। अब इसमें क्या होगा? हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल्स यूज होंगे, इरिगेशन यूज होगी, मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाएगा फ्रॉम द स्मॉल लैंड। छोटे लैंड में से ज्यादा आउटपुट निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ HIV सीड्स, विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ये सब कुछ इसमें यूज होगा एंड दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव। ये इंटेंसिव है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, नाउ द थर्ड टाइप। द थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर होती है? एग्रीकल्चर फॉर सेल एंड परचेज इन मार्केट। मार्केट में चीजें बेचने के लिए और खरीदने के लिए जो एग्रीकल्चर हो, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो यूज होते हैं। इट इज प्रैक्टिस इन, ये जो एग्रीकल्चर है ये पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, मेनली कमर्शियल एग्रीकल्चर। और इसमें जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाना, दूसरी क्रॉप के बाद तीसरी क्रॉप लगाना, इट इज कॉमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फार्मिंग इज फॉर सेल एंड परचेज, uses higher doses of chemicals, insecticides and pesticides, practiced in Punjab and Haryana, and rotation of crops is common. Next is the plantation agriculture. It is also a type of commercial agriculture. ये commercial agriculture के जैसी ही होती है, पर इसमें difference क्या है कि इसमें single crop on a लार्ज एरिया, एक ही क्रॉप बहुत बड़े एरिया में लगाई जाती है, सिंगल क्रॉप। जैसे इंडिया में टी है, कॉफी है, रबर है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। वेल
डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए। मेनली प्रोडक्शन इज, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है डेट इज फॉर द मार्केट, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है डेट इज फॉर द मार्केट, ठीक है। सो दिस इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। थोड़ा सा ये कमर्शियल एग्रीकल्चर से ही मिलती जुलती होती है, पर इसमें सिंगल क्रॉप होती है और इसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है। नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, द पैटर्न इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, जिस पैटर्न में पूरा साल क्रॉप्स लगाई जाती हैं दैट इज कॉल्ड द क्रॉपिंग पैटर्न, उसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। तो हमारे इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न जो एग्रीकल्चरल सीजन्स हैं वो मेनली 3 हैं। फर्स्ट इज द रबी सीजन, देन इज द खरीफ सीजन एंड थर्ड इज द ज़ैद सीजन। पहला रबी सीजन। रबी सीजन जो है वो अक्टूबर में क्रॉप्स लगाई जाती हैं और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। दैट मीन्स अक्टूबर से लेके अप्रैल तक कौन सा सीजन है? रबी सीजन। और इसमें मेन क्रॉप्स कौन सी लगाई जाती हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन। अगला सीजन खरीफ। ये विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है जुलाई में, तब ये सीजन शुरू होता है और इसका एंड कब होता है? अक्टूबर। अक्टूबर में इसका एंड है। मेन क्रॉप्स कौन सी है? राइस, मेज, कॉटन एंड जू। मतलब कि जिन क्रॉप्स को पानी ज्यादा चाहिए, जो पानी ज्यादा, ये जुलाई अगस्त ये रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में पानी ऑटोमेटिकली क्रॉप्स को मिल जाएगा। तो ये सीजन कौन सा है? खरीफ। ये सीजन इन दोनों के बीच का बहुत शॉर्ट सीजन, शॉर्ट सीजन। ये अप्रैल में खत्म हो गया, ये जुलाई में शुरू हुआ, तो इसके बीच में मई और जून रह गए। तो वो जो मई और जून है डेट इज ज़ैद, वो तीसरा सीजन है ज़ैद, छोटा सा सीजन, ओनली द 2 month सीजन, 2 month सीजन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ, ठीक है, ड्यूरिंग समर्स। और इसमें क्रॉप्स कौन सी हैं? वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर। सो दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है। राइस इज द फर्स्ट क्रॉप, इट इज कॉल्ड द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। स्टेपल फूड का मतलब होता है मेन फूड, इंडिया का मेन फूड है। एंड व्हाट आर द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोइंग राइस? राइस को ग्रो करने के लिए किस तरह का ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स है? टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कब लगती है? जुलाई में, तो जुलाई में टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होता ही है। इसको रेन चाहिए क्योंकि ये रेनी सीजन में होता है, अबव 100 सेंटीमीटर। और अगर रेन नहीं है तो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड, जिसमें बहुत पानी हो, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस। और इसके एरियाज कौन से हैं? वेयर सॉइल इज ग्रोन इन इंडिया, इंडिया के कोस्टल एरियाज, इंडिया के डेल्टाइक रीजन्स, सारे ऑल डेल्टाइक रीजन्स एंड कोस्टल एरियाज, स्पेशली ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि डेल्टाज भी उधर ही हैं। डेल्टा ऑफ महानदी, डेल्टा ऑफ गोदावरी, डेल्टा ऑफ कृष्णा, कावेरी, वो सब इंडिया के ईस्ट साइड पे है। तो वो सारा एरिया जो है वो राइस ग्रोइंग एरिया है। पंजाब हरियाणा भी है, यहाँ पे भी राइस होते हैं, पर यहाँ पे नॉट बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द इरिगेशन। इरिगेशन की वजह से यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती है। नंबर 2 क्रॉप इज व्हीट। दिस इज द रबी क्रॉप, इसको रबी सीजन में लगाया जाता है। तो रबी सीजन कब शुरू होता है? अक्टूबर। अक्टूबर, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, कितना होगा? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। अक्टूबर का जो टेम्परेचर है वो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है। रेन कितनी चाहिए? इससे कम, 50 to 75 सेंटीमीटर्स होंगे। 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज सफिशिएंट फॉर व्हीट।
वीट के लिए सफिशिएंट रेनफॉल है, ठीक है। जब वीट ग्रो कर रही होती है, जनवरी आता है, तो जनवरी में पंजाब में, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेन होती है। दैट रेन इज सफिशिएंट फॉर ग्रोइंग वीट इन पंजाब एंड हरियाणा। सॉइल कैसी हो? अलूवियल एंड ब्लैक। अलूवियल और ब्लैक सॉइल दोनों सूटेबल हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ वीट। एरियाज कौन से हैं? गंगा और सतलुज का प्लेन। सतलुज का प्लेन कौन सा होगा? पंजाब सतलुज का प्लेन ही है ना। गंगा का प्लेन कौन सा होगा? यूपी, बिहार, ये गंगा के प्लेन्स हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल रीजन, मध्य प्रदेश का जो ब्लैक सॉइल रीजन है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर ग्रोइंग वीट, ठीक है। राजस्थान में भी वीट जो है वो लगाई जाती है, क्योंकि राजस्थान को जो पंजाब से पानी जाता है थ्रू राजस्थान केनाल के थ्रू पानी जाता है, और उस केनाल की वजह से राजस्थान में भी वीट कल्टीवेशन होता है। पंजाब में वीट है, हरियाणा में वीट है, यूपी में वीट है, बिहार में वीट है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, these states are famous for growing wheat in India, right? The next crop is maize. Maize is the kharif crop. That means it is grown in which season? Kharif season. And what are the geographical requirements for growing maize? It requires temperature 21 to 27 degrees Celsius. And the soil required is old alluvial. This soil is best for growing maize. And the areas where we grow maize in India: Karnataka, UP, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. And in Bihar, maize is grown in Rabi season also. Actually, this is the crop of Kharif season. But in Bihar, it is grown in Rabi also. And nowadays, the production of maize increase due to modern techniques used in the growing of maize. The next crop is millets. Millets क्या होती हैं? कोरस ग्रेन्स। इसके दाने मोटे होते हैं। आप देखो कोई ग्रेन ऐसा होता है जब आप उसको पीसोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होगा, लाइक वीट का आटा बहुत सॉफ्ट होता है। और कोई ग्रेन है जब आप उसको पीसोगे तो उसका आटा थोड़ा थिक होगा। आप वी आर पंजाबीज, हमने वो मक्की की रोटी खाई होगी। मक्की का आटा जो है वो मोटा होता है एज कंपेयर टू द व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो जो मोटा आटा है, जिससे मोटा आटा बनता है, वो कौन सा ग्रेन है? इट इज कॉल्ड द कोर्स ग्रेन्स। उसको हम कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। तो मेन कोर्स ग्रेन्स विच आर ग्रोन इन इंडिया, नंबर 1 is jowar, then comes bajra and then come ragi. एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन ग्रेन्स की, कि दीज ग्रेन्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है, तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। जवार इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, बाजरा इज ग्रोन इन राजस्थान इन इंडिया, रागी इज ग्रोन इन Karnataka in India. The next crop is pulses. Pulses means dalein. India is the largest producer and consumer of pulses. Pulses are the main source of protein in Indian diet. Major pulses that are grown in India, you all know the names of the pulses: urad, moong, masur, tur. These are the major pulses that are grown in India. Some of the pulses are grown in Rabi season and some of the pulses are grown in Kharif season also. Being leguminous, these crops are leguminous. Leguminous means that crops which helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen फ्रॉम द एयर। इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर होती है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। और जो मेजर एरियाज हैं जहां पे पल्सेस ग्रो की जाती हैं इंडिया में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। द नेक्स्ट क्रॉप इज शुगर केन।
शुगर कोइन को कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल रिक्वायर्ड 75 to 100 सेंटीमीटर। और शुगर केन जो है वो वैरायटी ऑफ सॉइल, एक ही तरह की सॉइल पे नहीं, बहुत सारी अलग अलग तरह की सॉइल्स पे शुगर केन ग्रो करता है। और इंडिया जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है आफ्टर ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर केन है और इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। और शुगर केन इट इज द सोर्स ऑफ शुगर, इससे शुगर बनती है। इट इज द सोर्स ऑफ जैगरी, जिसको आप गुड़ बोलते हो, गुड़ बनता है। सोर्स ऑफ शुगर केन एंड सोर्स ऑफ जैगरी एंड मोलासेस ऑल्सो। एरियाज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। These are the main areas of sugarcane in India. The next crop is oilseeds. India is the largest producer in the world in oilseed. And oilseeds are grown on 12% of the total cropped area of India. Oilseeds are used for the cooking purposes. It is also used as a raw material in soap making industries, cosmetic industries and ointment industries. And the major oilseeds that are produced in India are mustard, soybean, coconut, sunflower and groundnut also. The next crop is tea. Tea is the plantation crop. It is introduced in India by Britishers. This is grown in tropical and subtropical climates. Tea requires deep and well-drained soil. It requires deep soil. It requires the well-drained soil which is full of water, and it is rich in humus also. And rainfall. Tea requires frequent showers which are evenly distributed throughout the year, and it requires cheap labor also. It requires cheap labor, abundant and skilled labor also. And India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. India export, India की जो tea है उसकी international market में बहुत डिमांड है. And with the main areas where tea grown in India: Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Himachal Pradesh. The next crop is coffee. And what are the characteristics of coffee? India produces 4% of the world's coffee. India's coffee is known in the world for its good quality, क्योंकि good quality की coffee जो है वो इंडिया में produce होती है. Number 3, Arabica variety of coffee which is initially brought from Yemen. Yemen एक country का नाम है, वहां से ये वैरायटी यहाँ लाई गई थी. अरेबिका वैरायटी की वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. एंड द मेन एरियाज आर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. द नेक्स्ट क्रॉप इज रबर. रबर रिक्वायर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल मोर देन 200 centimeters. India ranks 4th in the world. According to 2010 and 11, India ranks 4th in the world. And important, rubber is the important industrial raw material also. Industry में as a raw material जो है वो rubber use होता है. And where India's rubber grown in India? It is grown in Kerala, it is grown in Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands. Cotton. Cotton requires high temperature to grow. High temperature, that means more than 25 degrees Celsius. It requires light rainfall. बारिश थोड़ी चाहिए. 210 frost free days. Frost क्या होता है? जो सर्दियों में कोहरा पड़ता है. पर 365 डेज में से 210 डेज ऐसे होने चाहिए जिसमें कोहरा बिल्कुल ना पड़े. That climate is suitable for growing cotton. India is the original home of cotton. Cotton यहीं से ही शुरू हुआ था.
and cotton is the main raw material in the कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जो कॉटन के कपड़े बनते हैं उसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉटन है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड एंड द मेजर एरियाज आर महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. द नेक्स्ट क्रॉप इज jute. Jute requires high temperature, it requires well drained soil and the rainfall required 150 to 200 centimeter. मतलब heavy rainfall is required and it is known as the golden fiber. क्योंकि jute का जो कलर होता है वो golden होता है तो it is called the golden fiber. And jute is used for making gunny bags. जो बोरियां बनती हैं जिसमें पैकिंग होती है, रोप्स बनती हैं, कारपेट्स बनते हैं, वो सब जूट से बनते हैं. पर जूट की जो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो इट इज लूजिंग इट्स मार्केट. इसकी जगह पे क्या आ गया, सिंथेटिक फाइबर आ गया, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सस्ता होता है. पर इसकी एडवांटेज क्या है कि इट इज इको फ्रेंडली. दिस इज इको फ्रेंडली. और वो जो सिंथेटिक फाइबर है इट इज नॉट द इको फ्रेंडली, पर इसकी कॉस्ट हाई है. दिस इज द डिसएडवांटेज. जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी कॉस्ट हाई नहीं है, वो लो कॉस्ट पे है. तो ये अपनी मार्केट लूज क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट इन द market. And it is mainly grown where? It is grown in West Bengal, it is grown in Bihar, it is grown in Assam, it is grown in Odisha. So these are all the crops that are grown in India. Now the next we will do the horticulture. What is the meaning of horticulture? Horticulture means growing of fruits, vegetables and flowers. India is the largest producer of fruits and vegetables in the world. India में बहुत सारे fruits और बहुत सारे जो vegetables हैं वो हम grow करते हैं. Mangoes are mainly grown in Maharashtra and Andhra Pradesh. Oranges are grown in Nagpur. Bananas are grown in Kerala. Lychees and guava, UP and Bihar. Pineapple, Meghalaya. Grapes, Andhra Pradesh. एप्पल, पियर्स, वॉलनट आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर. और इंडिया जो है वो 13% वर्ल्ड की वेजिटेबल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है. और इंडिया में हर तरह की वेजिटेबल, आप किसी भी वेजिटेबल का नाम ले लो, इट इज ग्रोन इन इंडिया, वो इंडिया में ग्रो करती है. और जो वेजिटेबल्स को लगाना या फ्रूट्स को लगाना उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर. वो हॉर्टिकल्चर होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें हम बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं. हर तरह का फ्रूट ग्रो करते हैं, हर तरह की वेजिटेबल ग्रो करते हैं. बट स्टिल डू यू थिंक इफ वी कंपेयर आवर एग्रीकल्चर विद द एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए बोथ आर सेम? नो, नहीं, हम सेम नहीं है. तो हमें किस चीज की जरूरत है? रिफॉर्म्स, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है. और हमने कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स की हैं अपनी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहली इंप्रूवमेंट्स कौन सी? इंस्टीट्यूशनल. हमने अपने लैंड को इंप्रूव किया. रिलेटेड टू लैंड, पहले क्या होता था, पुराने जमाने में लैंड एक ही बंदे के पास होता था. उस एक बंदे को क्या बोलते थे? जमींदार. वो गांव का जमींदार होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया. अबॉलिशन का क्या मतलब होता है? खत्म कर देना. तो ये पहला रिफॉर्म है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जहां पे एक बंदे के पास सारे गांव की लैंड होगी. वो सिस्टम खत्म कर दिया. अब हर एक के पास लैंड है, चाहे थोड़ी 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 है पर है. हर एक बंदा अपनी लैंड पे काम कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से करेगा. नंबर 2, पहले क्या होता था, पूरे गांव में लैंड बिखरी होती थी. जैसे आई एम द वन, तो मेरी लैंड एक जगह पे है, दूसरी जगह पे है, तीसरी जगह पे है, चौथी जगह पे है. गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको कंसोलिडेट कर दिया, एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिया. उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी और जो फार्मर है उसका टाइम सेव होगा और वो ज्यादा काम कर पाएगा. सीलिंग, थर्ड इज सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स. लैंड को सील कर दिया, एक लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा लैंड किसी के पास नहीं होगा. अगर वो आपकी लिमिट क्रॉस होती है, जितनी भी गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की फॉर द लैंड, अगर आपका लैंड उससे ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट आपसे वो लैंड ले लेगी.
कंपनसेशन आपको करके गवर्नमेंट वो लैंड ले लेगी और वो उसको देगी जिसके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं है. सो दीज आर द 3 रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लैंड. तीनों रिफॉर्म्स जो हैं वो लैंड के रिलेटेड हैं. अगले कौन से रिफॉर्म्स हैं? टेक्निकल रिफॉर्म्स, क्योंकि टेक्निकल की भी जरूरत है. हम टेक्नोलॉजी में ही पीछे जाते हैं यूएसए से. जब हमारे कंपैरिजन होता है तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे होते हैं. तो गवर्नमेंट ने कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं. सबसे पहली, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर. आजकल एग्रीकल्चर में आप देखते हो बहुत सारा मशीनों का यूज हो रहा है. ठीक है. फिर उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप को इंश्योर कर दिया कि अगर आपकी क्रॉप खराब भी हो जाती है तो गवर्नमेंट आप उसको उसकी कंपनसेशन देगी. गांव में बैंक्स खोल दिए जिसको ग्रामीण बैंक्स कहते हैं, जो कि फार्मर्स को इजीली लोन दे देंगे. मशीन्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए इजीली लोन दे देंगे. किसान का क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू कर दिया. ठीक है. इससे क्या होगी, किसान को बहुत इजीली हो जाएगा मनी ट्रांजैक्शन करना. PAIS, पर्सनल, इट इज कॉल्ड द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. अगर आपका खेती बाड़ी करते, जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे भी आपको इंश्योरेंस मिलती है. एंड दिस इज कॉल्ड PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. नेक्स्ट, टीवी और रेडियो पे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की हाउ टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. क्योंकि आपके घर में, सबके घरों में एक्सपर्ट्स आए और वो आपको आके बताएं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. तो फिर टीवी और रेडियो तो सबके घरों में है, सब सुन सकते हैं. वहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आपको बताते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर एग्रीकल्चर और हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं. उसके बाद गवर्नमेंट ने लास्ट क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हर एक चीज का एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया कि जब भी आप कोई चीज उगाते हो, उसको जब आप मार्केट में बेचने जाते हो तो ये उसका मिनिमम प्राइस होगा, इसके नीचे प्राइस नहीं होगा. दिस इज द मिनिमम. क्यों ये किया? किसानों को सपोर्ट करने के लिए. तो इसको क्या बोला जाता है? सपोर्ट प्राइस. Yes, now after the reforms, the next is the contribution of agriculture in national economy. कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, हमारे एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है और हमारे आउटपुट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है. एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है. इसके बगैर इकोनॉमी चल ही नहीं सकती. द शेयर इन जीडीपी थ्रू हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 onwards. And yet its share in providing employment and livelihood to the population continues to be as high as 63% in 2001. 2001 में 63% लोगों को employment जो है वो एग्रीकल्चर ने ही दिया. द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में जो है वो बहुत सीरियस मैटर है, कंसर्न है कि शेयर जीडीपी में इसका डाउन हो रहा है. बिकॉज एनी डिक्लाइन इन स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर, कि अगर एग्रीकल्चर डाउन आ जाता है या उसमें स्टेग्नेशन आ जाती है तो बाकी जो जितने भी स्फीयर्स हैं इकोनॉमी के वो भी डाउन हो जाएंगे. नेक्स्ट, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाए. गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इट इज कॉल्ड ICAR. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, इसमें रिसर्च होता है एग्रीकल्चर के ऊपर. गवर्नमेंट हैज ओपन सो मेनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड वेटनरी यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. इफ आई टॉक अबाउट पंजाब, अगर मैं पंजाब की बात करती हूँ तो पंजाब की कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर पे जहाँ पे रिसर्च होता है? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना. वहाँ वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर पे. वेटनरी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, गढ़वासु गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी, ठीक है. इट इज ऑल्सो इन लुधियाना, ये भी लुधियाना में ही है वेटनरी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एनिमल्स, जो आप एनिमल्स घर में रखते हो, गाय भैंसे
ये जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर जो पढ़ाई है दैट इज कॉल्ड द वेटरनरी, उसको वेटरनरी बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए कि हमारा हॉर्टिकल्चर जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो। रिसर्च, क्योंकि मेट्रोलॉजी, वेदर बहुत ज़रूरी है, वेदर बहुत मैटर करता है कि आपका मौसम कैसा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी। तो फिर रिसर्च किस पे होना चाहिए? वेदर फोरकास्ट, कि आप पहले ही फोरकास्ट करो कि वेदर कैसा हो। मेट्रियोलॉजी पे, मेट्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर, उसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। तो रिसर्च इन मेट्रियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। लास्ट, एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? रीजन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई एग्रीकल्चर इज कॉल्ड मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला रीजन कि 63% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। इतने लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसे अब कॉटन से कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन के कपड़े की इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? कॉटन पे। शुगर बनती है, शुगर इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड टू वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और हम अपनी चीजें बाहर बेच के बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमें जो है वो मिलता है। और एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग फूड टू द पॉपुलेशन। अब देखो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है, उसको फूड कहाँ से आता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर, और ये हमारे जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? मैं एक बारी आपको सारा फिर से दोबारा क्वेश्चंस बता देती हूँ। हमने इसमें क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? कौन से सीजन्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं? रबी, खरीफ एंड ज़ैद। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं? हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, क्या होता है? इंडिया एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में? गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और एग्रीकल्चर को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी इकोनॉमी में? जो एग्रीकल्चर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। This is all about your chapter. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you very much, students.